Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. This is the month of April, and during this time in India particularly, almost all schools reopen, and the parents are wanting their children to get admitted in one or the other school. And while they are deciding about the schools, there are a lot many number of factors which they keep in mind. Some feel like the infrastructure must be great. Some say the teaching learning process must be great. Some say that distance is very, very important for them. Some decide based on which particular board the school is affiliated to or what curriculum that school follows. But in the recent past, there have been another thing which has been added, that many parents, particularly in metros and bigger cities, think of those schools which make big use of technology. I mean, is that school technology enabled or not? Does that school have all the facilities related to technology? Does that school provide tablets and iPads, etc. To the children, or iPhones are allowed or not? Are they using these gadgets for the teaching learning process or not? So that has become an additional attraction for the parents. And there are many schools which are really try to create such facilities which are having a lot of technology use. So, and everybody does it only for the purpose of that the children will learn it better than what they would be doing without having such tools available in schools. So I came across one report in one of the newspapers, and it was a video also, where a Swedish institution, that is Karolinska Institute. It's a university which had conducted a research, and there was another research. This research was conducted in 2023, and there was another research which was conducted by Roetnoor Institute of Netherlands in 2022. Now, both the research give one common picture of their outcomes, and what they say is that it is not necessary that these digital tools or the use of technology is enhancing the learning outcomes of children. They're not very sure, and they say that there is no scientific proof which tells that there is improvement in the learning outcomes. Rather, there is a proof that it impairs the learning outcomes. Rather, it reduces the learning level of the children. So there are 3, 4, 5 things which they have mentioned, rather more than that. So first thing which they say is the negative consequence. So the negative consequence of using this technology and these digital tools is that it distracts them from learning process. और जब वो distract होते हैं तो naturally जो learning outcomes का level है वो बढ़ेगा तो नहीं, कम ही होगा. So that is one thing which they have come across. Another is digitalization impact. अब जो मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई जब हम अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में डालते हैं या कोई ऐसा स्कूल अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तैयार करता है कि जिसमें डिजिटल यूज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो, तो हम ये उम्मीद करके करते हैं कि भाई लर्निंग आउटकम्स बेटर होंगी, हमारे बच्चे बेहतर समझेंगे. बट इसका कोई भी एविडेंस अभी तक अवेलेबल नहीं है. दिस इज व्हाट दीज टू रिसर्चेस से. एंड द थर्ड वन, दे टॉक अबाउट कंसर्न अबाउट यंग चिल्ड्रंस हेल्थ. अब उनकी हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. भाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है. सो दैट इज अनदर कंसर्न विच हैज बीन फाउंड आउट इन दीज रिसर्चेस. एंड द नेक्स्ट इज लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस. अब देखिए, अब आपने कह तो दिया डिजिटल यूज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, टूल्स भी अलाउड होनी चाहिए, बट इसका यूज किस तरह से हो, कितना हो, कब हो, ये गाइडलाइन कोई भी अभी तक तैयार नहीं कर पाया. और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि देयर इज रिस्क ऑफ डिक्रीज्ड इक्विटी, बिकॉज बहुत सारे जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर स्कूल्स का कमरे भी ठीक से नहीं होंगे और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं होगी, टूल्स अवेलेबल नहीं होंगे. तो ये तो इशू खैर बिल्कुल ही डिफरेंट है. बट इवन इफ आई टेक ओनली द फर्स्ट 4, in that also it is not improving those children also who are from those family backgrounds where they have all the facilities, और schools भी सब कुछ दे रहे हैं, बट उसके बाद भी पाया यही जा रहा है कि लर्निंग आउटकम्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी ये एडटेक कंपनीज हैं, जो भी ये टूल्स बना रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हमें बना के देते हैं, किसी ने कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं की है कि भाई इस एडटेक कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके द लर्निंग आउटकम्स वुड इम्प्रूव लाइक दिस और दिस मच परसेंटेज. नोबडी इज एबल टू. मैं तो आपको अपनी बात बताऊं, मेरे पास जब कोई आता था, मैं यूजुअली पूछता था
कि okay, you are promoting this particular thing to be used in this school. Tell me those schools which are using it, because they will tell lot number of schools are using this product. So I would usually ask very politely, can you give me some data that the learning outcomes in those schools have improved? And they were not able to give it. And this has been proved by this research now. I thought I was not very sure about it, but then now I seem to be quite sure that they do not have any data, because not many of them would have conducted any research like this. नहीं किया होगा उन्होंने. तो सही बात तो ये है कि डिजिटल टूल्स आर इम्पेयरिंग द लर्निंग आउटकम्स देन एनहेंसिंग इट. और इसका कंसर्न तो मैं आपको बताऊं, यूनेस्को ने भी अगस्त 23 में ये बात कही है कि देयर इज एन अर्जेंट कॉल टू मेक श्योर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स. वो कह रहे हैं अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो ये नहीं कह रहे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ व्हाट इज द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? हु विल डिफाइन दैट? और चूंकि कोई गाइडलाइन नहीं है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइन तो मैंने आपको बताया है ही, तो सब अपनी बात कहे जा रहे हैं और इसको इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि स्कूल्स भी विक्टिम बनते हैं, पेरेंट्स भी विक्टिम बनते हैं, और बच्चे तो हमारे सफर करते ही करते हैं कि जाने ये अगर होगा तो भाई, क्योंकि स्कूल्स भी खूब खर्चा करते हैं इसके ऊपर, लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर स्पेंट ऑन दैट. टीचर्स ट्रेनिंग होती है, वो सब खरीदा जाता है. तो और उसके बाद अगर लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव ना करें, और रादर नेगेटिव और कर रहा है ये हमें, हमारे बच्चों को हेल्थ का मैंने बताया आपको, हेल्थ की प्रॉब्लम बच्चों की होती है. और देखिए इसको अगर मैं छोड़ूं, इससे आगे बढ़ूं, इसी दौरान में मैंने ये वेब सीरीज भी देखी, एडोलेसेंस, जिसके बारे में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की एक न्यूज थी 2 दिन पहले अखबारों में, जिसमें वो ही वाज विद द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस वेब सीरीज, एंड ही सेड दैट व्हेन आई वॉच्ड दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज विद माय चिल्ड्रन, अ डॉटर एंड सन, आई वाज शॉक्ड. और वो चाहते हैं कि वो प्रोड्यूसर्स इस वेब सीरीज को सभी हाई स्कूल्स में वहां पे दिखाएं. और उनका इरादा ये है कि अगर ये वेब सीरीज देखेंगे बच्चे, तो उनको ये पता लगेगा कि ये जो डिजिटल टूल्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो यूज कर रहे हैं, उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, वो उनको कितना नुकसान पहुंचा सकता है. ये टीचर्स को भी पता चलेगा, ये पेरेंट्स को भी पता चलेगा. मैं आपको एक बात बताऊं बहुत ऑनेस्टली, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात कही है अपने वीडियोज में कि भाई हमें बच्चों को इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इनसे बचाना है, कैसे भी हम बचाएं. और अगर उनसे हम बचा पाएंगे तो बहुत सारे जो बच्चों के अंदर उस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कोई जन्म से उनके अंदर नहीं होती, वो सब ये जो टूल्स है ना, ये वायलेंट गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं जो वो खेलते हैं, एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, और ड्यूरिंग दोज चैट्स वो जिस तरह की बातें करते हैं ना, देखिए उसको सुपरवाइज करना बड़ा मुश्किल होता है. अच्छा चलिए आप सुपरवाइज भी कर लेते, तो उसके बावजूद इनके पास इस तरह की इमोजीज हैं, इस तरह के सिंबल्स हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मतलब इसका ये कहना क्या चाह रहा है, इसने किसी दूसरे बच्चे के पास भेजा क्या है. और मैं आपको इसकी वेब सीरीज का एक उदाहरण दूंगा कि इवन दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाज नॉट अवेयर ऑफ दीज इमोजीज एंड सिंबल्स एंड देयर मीनिंग. उनको भी बच्चों से पता चला, बच्चों ने जब बताया, और इतना बुलिंग होते थे देखने के लिए. अगर मैं देखूंगा या आप देखेंगे तो आपको तो लगेगा एक सिंबल ही तो है, एक इमोजी तो भेजी है बच्चे ने इस कलर की, लेकिन उसका जो मीनिंग है दैट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव मीनिंग, एंड द चिल्ड्रन रियली गेट सो मच नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय दैट कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने ये कभी किया नहीं है, देखा नहीं है, हमें समझ नहीं आता. देखिए हम तो बात करते हैं कि बच्चे ने किसी को जोर से बोल दिया, किसी ने किसी बच्चे को अब्यूज कर दिया, किसी ने बच्चे को थोड़ा सा तरह धक्का दे दिया. अरे ये नहीं, इससे भी ज्यादा जो मेंटल और इमोशनल बुलिंग बच्चों की हो रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और डिजिटल टूल्स के थ्रू, वो मतलब अनइमेजिनेबल है, अब हम उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते. और ये जब मैंने वेब सीरीज देखी और जो मैं जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि आई वाज शॉक्ड, frankly speaking I was also shocked when I watched it. And this child who is accused of a crime, I'm not telling what that crime is, because when you watch this this web series, it's from our country point of view, it's a very it's very different kind of depiction when it comes to school environment and the behavior of the children in the school. वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी एक जगह बोलते हैं ये किस तरह का स्कूल है, किस तरह का माहौल है स्कूल में. तो अभी तो देखिए व्हेन इट कम्स टू इंडिया,
the schools are so well disciplined, the parents are so good, the children are very respectful towards their teachers are very loving towards their students. तो बहुत अच्छा माहौल है. लेकिन अगर ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज, डिजिटल टूल्स का यूज अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी कहीं उसी सिचुएशन में ना पहुंच जाए जिसमें जाकर के अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है कि हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि इनका कितना बड़ा नुकसान है. मैं शायद आपको बताना भूल गया कि बेस्ड ऑन दैट रिसर्च रिपोर्ट ऑफ कैरोलिंस्की इंस्टीट्यूट, स्वीडन गवर्नमेंट ने तो कम कर दिया है, ऑलमोस्ट मना कर दिया है. प्राइमरी में तो कोई डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल नहीं होगा. वो तो वापस प्रिंटेड बुक्स के ऊपर और पेन पेपर के ऊपर आ गए हैं. उन्होंने कहा कि हमें तो इस तरह से इन्हीं को यूज़ करना. और एक जगह इन्होंने रिसर्चर्स ने कुछ बच्चों से भी पूछा था, उन्होंने कहा कि हमें लिख करके जो व्हेन वी राइट सो वी लर्न बेटर एंड वी एंजॉय इट. और इस पे तो और बाकी कंट्रीज भी जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम डिजिटल टूल्स का यूज़ प्राइमरी क्लासेस में तो कम से कम करें या ना करें. आप देखें जर्मनी तो वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्री है. वहाँ पर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वेरी स्लो. इट हैज़ नॉट बीन वेरी फास्ट. एकदम से नहीं कि बहुत तेज़ी के साथ लोगों ने उसको यूज़ किया हो. अब आप कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी की बुराई कर रहा हूँ, तो डिजिटल टूल्स तो बिल्कुल ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है. बट जो मैंने यूनेस्को वाली बात आपसे कही थी, appropriate use of technology. Now, when to use it and how much should we use it is to be decided by the schools and by the parents. और आप देखिए कि जब इस वेब सीरीज को आप देखेंगे आप पाएंगे कि यूजुअली, अब मेरा भी कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस था कि व्हेनेवर अ चाइल्ड बिहेव्स इन ए नेगेटिवली मैनर, we usually try to find out how is the family background, how was the parenting, were the parents not behaving well at home and all that. लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, इस वेब सीरीज में एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जिसमें कहा जाता है कि आर दीज द पेरेंट्स ओनली और इज इट ओनली द पेरेंटिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर वट एवर इट इज, और देर आर अदर एजेंसीज ऑल्सो फॉर दैट. देखा ये जा रहा है और मैं इस बात को शायद पहले भी मानता था, शायद इतनी ओपनली कह नहीं पाता था, बट सच्चाई ये है कि स्कूल्स भी इम्पैक्ट करते हैं, सोसाइटी भी इम्पैक्ट करती है, पीयर्स भी इम्पैक्ट करते हैं, और हम सबको मिलकर के ही बच्चों को बचा सकते हैं. ओनली पेरेंटिंग इंप्रूवमेंट विल नॉट मेक sense, only school environment improvement will not make sense, only society becoming better will not make. So all three, rather the governments also would have to get involved, have to come together and provide that possible environment to the children which do not really allow them to access or approach anything which is violent, which is negative. नहीं जाए बच्चे. और आपको जैसे मैंने कहा, डिजिटल टूल्स जितने भी आपके पास है, खासकर स्मार्टफोन्स, उसमें आपको इतने बच्चे ये गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे वायलेंट गेम्स होते हैं, बहुत वायलेंट, तो वहाँ से सीखते हैं बच्चे. अब आप देखिए कि पेरेंट कई बार एक सवाल पूछते हैं कि सब टेक्नोलॉजी तो स्कूल्स यूज़ कर रहे हैं, कई बार हमें वहाँ से मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल है वो बाय मेल आता है या बाय व्हाट्सएप आता है, तो हम कैसे करें, हमें तो बच्चों को ये डिजिटल टूल्स देने पड़ते हैं, स्मार्टफोन देने पड़ते हैं. मेरा कहना ये है कि एक तो स्कूल्स को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, एज आई सेड, अप्रोप्रिएटली, और उसके बाद कितने वो वीक में 2 बार 3 बार कोई आपके पास वीडियो आया जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चे को, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और चैप्टर विच द चाइल्ड वुड हैव स्टडीड एट स्कूल. आपके पास उसका वीडियो का लिंक आता है, 15 मिनट का, 10 मिनट का, आप बच्चे के साथ आप भी देख लीजिए ना. आप बच्चे को अपने सामने किसी भी डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे उसको दिखा दीजिए. उसके लिए आप जरूरी थोड़ा कि आप बच्चे को कोई डिजिटल टूल दे ही दे, या कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपके टेक्स्ट फॉर्म में आई है, आप उसका प्रिंट आउट लेके दे दीजिए बच्चे को. तो थोड़ा तो आपको उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा. और मैं कहता हूं कि अगर हमारे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स बेहतर हों और हमारे बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कम होए, उसके लिए अगर हमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना है तो हम एज टीचर्स और एज पेरेंट्स हमें क्यों नहीं करना चाहिए. देखिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हैं और बहुत इसके बारे में बात की जाती है कि दीजिए टेक्नोलॉजी में फिर लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टीचर चाहें तो बस इंस्ट्रक्शन दे दें, इनपुट दे दें, लेसन प्लान बनकर आ जाएगा, टीचर्स का असेसमेंट का काम बड़ा आसान हो जाएगा, ये वो. ठीक है, टीचर का काम आसान हो गया, बट हैज़ इट एनहांस्ड द लर्निंग आउटकम ऑफ द चिल्ड्रन?
And if it has not, then I don't agree with that there is any advantage of making teachers task easier. टीचर्स टास्क आप इजियर बनाइए, बट उससे अगर हमारे बच्चे का लर्निंग आउटकम बढ़ता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आप मान के चलिए कि आप टूल्स तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मैं तो कर दूं, बाकी तो पेरेंट्स नहीं करते। इसके लिए भी एक न्यूज़ छपी है, बड़ी हार्टनिंग न्यूज़ थी, बहुत ही आनंद आया इस खबर को पढ़ के कि ब्रिटेन के अंदर ही कुछ पेरेंट्स, 2 पेरेंट थे जिनको लगा कि हमारे बच्चों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे नहीं पता वो एडोलिसेंस वेब सीरीज देख करके उनके दिमाग में ये बात आई थी या उससे पहले आ गई थी कि हमारे बच्चों को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है स्मार्टफोन का, तो हम अवॉइड करेंगे अपने बच्चों को स्मार्टफोन देना। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अवॉइड गिविंग द स्मार्टफोन बिकॉज रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर गेटिंग इट इन द स्कूल। तो वो दोनों मिले और उन्होंने एक ग्रुप बना करके ये बाकी पेरेंट्स को भी ये कन्वे किया कि ये बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो लेट अस डिसाइड टुगेदर दैट वी विल नॉट प्रोवाइड द स्मार्टफोन्स टू आवर चिल्ड्रन। और उसका ये असर हुआ कि आज करीब 1,24,000, रादर मोर देन 1,24,000 पेरेंट्स आर द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप and their children are studying, they're from different schools, around more than 13,000 schools के बच्चे हैं जिनके ये पेरेंट्स हैं। 124,000 parents have come together and they have decided not to provide a smartphone to their children. बहुत बड़ा काम हुआ and this number might grow। अगर बच्चों को फायदा होता है इसका, और जब फायदा होगा, 100 अगर की बात नहीं है, फायदा होगा, तो why would not more parents join it? आपको मैं ये सही बताऊं कि जो हमारी ये उम्र है, चूँकि इसमें जो बच्चा बेसिकली क्राइम एक्यूज है उसकी उम्र 13 साल है। सो ये 12-13 साल, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे, एडोलिसेंस में बच्चों का जो पीएफसी है वो उतना डेवलप नहीं होता, वो नहीं कंट्रोल कर पाते, वो नहीं समझ पाते कि जो वो कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होगा। तो अगर हम 14 साल तक के बच्चों को, जो ये ग्रुप ऑफ पेरेंट्स है, ये उन पेरेंट्स का जिनके बच्चे 14 ईयर्स तक के हैं और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम स्मार्टफोन नहीं देंगे अपने बच्चों को। तो अगर आप लोग भी चाहें तो एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना के सब पेरेंट्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम स्मार्टफोन अपने बच्चों को नहीं देंगे। स्कूल्स को भी ये सोचना है कि जो मटेरियल वो पेरेंट्स के पास भेज रहे हैं, बच्चों की लर्निंग एनहांसमेंट के लिए भेज रहे हैं, वो भी उसके लिए बच्चों को ही जरूरत ना पड़े कि डिजिटल टूल बोले, पेरेंट्स उसमें हेल्प कर दें, उतना ही भेजें, उतना ही इस्तेमाल करें उसको। तो क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 6th 7th 8th ग्रेड चिल्ड्रन ऑफ इंडियन स्कूल्स, आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी वोलेटाइल एज, बहुत मुश्किल एज होती है इन बच्चों। तो इन बच्चों को हमें डिजिटल टूल से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, कम से कम एक्सपोजर इनका ये करना पड़ेगा। आप उनकी बातों में ना आइए जो आकर के बड़े बड़े सुहाने सपने दिखाएं कि ये इस्तेमाल कर दिया तो पता नहीं बच्चा क्या बन जाएगा, क्या सीख लेगा। देखिए, जो मैंने आपको रिसर्च जिक्र किया है, बेस्ड ऑन दैट इट डज नॉट हैपन सो। ये मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं लोगों की, और हम एज स्कूल्स एंड पेरेंट्स बिकम विक्टिम ऑफ दैट। तो उससे हमें बचना है, और अगर हम उससे बचेंगे तो हमारे बच्चे तो ऑटोमेटिकली ही बच जाएंगे। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चिल्ड्रंस सेफ्टी एंड फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर देयर एनहांस्ड लर्निंग आउटकम्स। सो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और हम सब मिलकर, स्कूल्स, पेरेंट्स, सोसाइटी मिल करके इस चीज़ को कर सकते हैं। बिल्कुल लॉ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो अपने बच्चों को इन डिजिटल टूल्स के हार्मफुल इफेक्ट से बचाएंगे, एंड ओनली वे ऑफ सेविंग देम फ्रॉम दैट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम द स्मार्टफोन टिल द एज ऑफ 14 years. So with this request, I would take leave from all of you, and let us meet in the next episode. Thank you very much. God bless us.